سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری میں میرے تمام بزرگوں کو، میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار۔ میں دل و جان سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور پاکستان میں خداوند نے مجھے سنبھالے رکھا، اور خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے آپ سب کی قوم کے وسیلہ سے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور خداوند نے پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور اپنے چرچ کی خدمت کروں اور اپنی تمام کلیسیا کی خدمت کروں۔ میں جناب محترم پاسٹر شہباز صاحب کا، اپنے بہن کا اور پوری کلیسیا کا دل و جان سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ پھر موقع دیا کہ میں ویڈ آف گاڈ، خدا کا پاک کلام، خدا کے منہ کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ میرے لوگ اس روحانی خوراک سے سیر اور افزودہ ہو کر برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کو میں اپنے پورے خاندان کی طرف سے سلام کہنا چاہتا ہوں اور بچوں کو پیار کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، سدا خوش رہے، آباد رہے۔ آج خداوند کے پاک کلام کو سنیں اور بڑے غور سے سنیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ہم خدا کے پاک کلام کو بڑے غور سے سنتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل بھی کرتے ہیں، اور خداوند سے برکت پاتے ہیں اور کثرت کی برکت پاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ آمین۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 9 آیت۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 9 آیت۔ ایک ہی آیت پر آج خدا کے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ کلیسیا میں سے جس کو خداوند کا پاک روح ہدایت کرے وہ کلام مقدس کو پڑھے۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے دروازہ میں ہوں، جو مجھ میں سے داخل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ جی خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کو کون نہیں جانتا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کو پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اسی نے فرمایا دروازہ میں ہوں، اس نے فرمایا دروازہ میں ہوں۔ اسی نے فرمایا میں مر گیا تھا، اب جی اٹھا ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کی آواز ہے۔ اس نے فرمایا میں مر گیا تھا، اب جی اٹھا ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ابدالآباد کیا ہے؟ ہمیشہ تک زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ بھی سب کا ایمان ہے، جتنے مسیحی لوگ ہیں سب کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کیا ہے؟ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ اگر آپ آگے جائیں، اسی نے فرمایا دروازہ میں ہوں، جو مجھ میں سے داخل ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ آج میرا جو مضمون ہے، میرا جو موضوع ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ نجات ہے۔ نجات کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ نجات اسی کے وسیلہ سے ملتی ہے، چھٹکارا اسی کے وسیلہ سے ملتا ہے، رہائی اسی کے وسیلہ سے ملتی ہے، مخلصی اسی کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں
उसके बगैर कोई भी नहीं मखलसी दे सकता, कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता, कोई भी रहाई नहीं दे सकता, कोई भी निजात नहीं दे सकता, क्योंकि निजात खुदा यसू मसीह से। उसी ने ही फरमाया मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, यसू ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। वो क्या करेगा? जो मेरी पैरवी करेगा, वो मेरी फरमाबरदारी करेगा, वो अंधेरे से निकल जाएगा। अंधेरा क्या है? अंधेरा गुनाह है मेरे भाइयों। उतनी देर तक हम अंधेरे से गुनाह से नहीं निकल सकते जब तक हम खुदावंद यसू मसीह नासरी की पैरवी नहीं करते, उसके पैरों पर पैर नहीं रखते, उसके हुक्म को नहीं मानते। जब हम उसके हुक्म को मानेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो खुदावंद यसू मसीह नासरी की हम क्या करेंगे? पैरवी करेंगे। अगर हम खुदावंद यसू मसीह नासरी की पैरवी करेंगे तो हमें दुनिया में भी क्या मिलेगा? वो दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होगा वो निजात पाएगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और क्या करेगा? चारा पाएगा। उसको ब्लेसिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, हशमत मिलेगी, बुजुर्गी मिलेगी, हत्ता के हमेशा की जिंदगी भी उसी को मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। याद रखें, जब तक इंसान के दिल में खुदी है, घमंड है, हसद है, उगस है, फरका है, बिदअत है, नफरत है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया में जिएगा जरूर लेकिन बरकत नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जिएगा जरूर, अपने वक्त तक जीता रहे, जैसे भी जिए, क्योंकि ये जिंदगी और मौत खुदा के पास है। लेकिन खुदावंद बार बार मौका देता, खुदावंद के पास मिलकर खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा बार बार आवाज दे रहा है, मैं नूर हूं, मेरे पास आओ, मेरी पैरवी करो, अंधेरे से निकल जाओ, गुनाह से निकल जाओ और क्या करो? बरकत करो। आज मेरे चीजों अंधेरे से निकलने के लिए 2 रास्ते हैं। क्या है जी? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि हमने सबसे पहले, जैसे कि हमारी बहन ने अभी खुदा के पास लाने से पढ़ा, मुकद्दस की इंजील उसका 28 बाब उसकी 16 था 20 आयत में मेरी बहन ने पढ़ा, वो आपने सुना भी, लेकिन मैं उसी को फिर दोहराना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए दोहराना चाहूंगा कि वो खुदावंद यसू मसीह नासरी का अरशाद आज़म है। जब हम खुदावंद यसू मसीह नासरी के अरशाद आज़म पर अमल करेंगे तो हम बरकत भी पाएंगे, हम गुनाह से निकल जाएंगे, हम खुदावंद के फजल से हम निजात को हासिल कर लेंगे। पहला पॉइंट है, रास्ते हैं। अगर हम सियालकोट में जाना है हमने, तो हम सियालकोट की बस पकड़ेंगे। अगर हमने लाहौर में जाना है तो हम लाहौर की बस में बैठेंगे। अगर मैंने सऊदी अरब आना था तो मैंने सऊदी अरब का जहाज पकड़ा, मैंने कोई बहरीन का नहीं पकड़ा। अगर आप चाहते हैं कि हम निजात पाए तो क्या करना पड़ेगा? हमें खुदावंद यसू मसीह नासरी की पैरवी करनी पड़ेगी। 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता और दोनों रास्ता खुदावंद यसू मसीह नासरी के अरशाद आज़म है। सुनिए जरा गौर से। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सबको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक दिन नहीं, हमेशा जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, उसके बाद भी खुदावंद हमारे साथ रहेगा। क्या फरमाया खुदावंद यसू मसीह नासरी ने? और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, 1 बटा 2 हिस्सा नहीं, 3 बटा 4 नहीं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और
रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। जब तक आदमी बपतिस्मा नहीं लेता वो शागिर्द नहीं बनता। याद रखें, खुदा का पाक कलाम बोलता है, मैं नहीं बोलता, हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्द नहीं बन सकते, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ही नहीं कर रहे, उस पर ईमान ही नहीं ला रहे, उसको अपना उसके खानदान में शमूलियत ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे उसके शागिर्द बन सकते हैं? याद रखें, बड़े पॉइंट की बात है, बड़े गौर से देखें क्या लिखा है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। आज हमारे कौन जो है शक में, बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। आज भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि उसका कलाम हमारे पास है। ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह की बातें हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह का कलाम है। मेरा कलाम नहीं, पास्टर साहब का कलाम नहीं, मेरी बहन का कलाम नहीं, डॉक्टर साहब का कलाम नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस जो है हकीकत है, ये सब कुछ हुआ और इसमें दर्ज है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनसे कहा कि आसमान और जमीन का खुद इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सबको ये तालीम दो। दूसरा पॉइंट, और उन सबको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। आज बहुत लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया। बपतिस्मा लोग बहुत खुशी से लेते हैं, चलो जी ठीक है हम ले लेते हैं, खुदावंद के हुक्म को पूरा करते हैं, हम निजात याफ्ता हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बाद क्या है? और उन सब को ये हुक्म दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, क्योंकि मुकद्दस लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 46 आयत पे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? कितनी बड़ी बात खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कही। उन्होंने फरमाया, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? फिर 50 सबूत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात। आज अगर हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देखना चाहते हैं तो हमें 2 पॉइंट पर अमल करना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मे के बाद क्या करना है? हमने खुदा के पाक कलाम पर अमल करना है। जब हम खुदा के पाक कलाम पर अमल करेंगे तो हम बरकत पा जाएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में लिखा है, और निकोदेमुस एक सरदार था, वो एक शरा का आलम था। उसने यीशु के पास आकर यीशु से सवाल किया, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। बड़े पॉइंट की बात है, खुदा की बादशाही को देखने के लिए उसकी आंखें बंद हैं। जब तक आदमी बपतिस्मा नहीं लेता, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, उतनी देर तक उसकी आंखें जो हैं बंद हैं। जब वो बपतिस्मा ले लेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तक कोई खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कभी झूठ बोला नहीं बोला। उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे निकोदेमुस बादशाह को खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उसकी आंखें बंद हैं। फिर उसने सवाल किया, क्या आदमी एक मर्तबा नए सिरे से पैदा होने के लिए दोबारा अपनी माँ के पेट में जाएगा? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फिर फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा न हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है भाई, हम खुदा की बादशाही में बगैर बपतिस्मे से दाखिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, ये खुदा का पाक कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा के मुंह की बातें हैं, ना मेरी बातें हैं ना आपकी बातें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फिर फरमाया, उसको क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता।
जब हम बपतिस्मा लेंगे तो पानी से बपतिस्मा लेंगे। जब हम बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदस हमें कौन देगा? गदस बत्ती के इंजील उसके 3 बाब में लिखा है, यूहन्ना इस्तबागी ने कहा मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे सुअर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खित्ते में जमा करेगा और उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो कौन है जी? वो भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। उसने गवाही दी, उसने इकरार किया, उसने इनकार नहीं किया, उसने इकरार किया कि मेरे बाद वो आने वाला है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के हुक्म को पूरा करते हैं। खुदा के खादम लोग हम सब मिलकर तो जब किसी को बपतिस्मा देते हैं, उसको नए सिरे से पैदा करते हैं, तो क्या करते हैं? हम खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं। और उसके बाद क्या है? क्या लिखा है? मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे सुअर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खित्ते में जमा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। और रूह कुदस और आग होली स्पिरिट, वो उसका बपतिस्मा कौन देगा? खुदावंद यीशु मसीह नासरी देगा। अगर हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो हम रूह कुदस का बपतिस्मा हमें कहां से मिलेगा? अगर हम रूह कुदस का बपतिस्मा लेंगे, अपने चाल चलन को, अपने करैक्टर को, अपने उठने बैठने को, अपने चलने फिरने को खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारेंगे, तो फिर क्या हमें मिलेगा? हमें रूह कुदस मिलेगा, फिर रूह कुदस मिलेगा। अगर हमारी लाइफ गंदी है तो हमें कभी भी रूह कुदस नहीं मिलेगा, हम पानी के बपतिस्मे तक ही खड़े रहेंगे। अगर हमारी लाइफ में बदी है, घमंड है, हसद है, बुग़्ज़ है, फरका है, बिदअत है, नफरत है और बुरी बातें हैं, तो हम पानी के बपतिस्मे तक ही खड़े रहेंगे, हमें रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, जब हमें रूह कुदस का हमारा करैक्टर अच्छा होगा, हमारा चाल चलन अच्छा होगा, हमारा उठना बैठना अच्छा होगा, तो खुदावंद को पसंद आएगा, हमारी लाइफ खुदावंद को पसंद आएगी, तो खुदावंद क्या करेगा? हमें रूह कुदस देगा और वो रूह कुदस हमें तह की बातें बताएगा। रूह कुदस हमारी प्रोटेक्शन करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, शैतान हमारे जिक्र आने भी नहीं पाएगा। याद रखें, आज क्यों लोग ज्यादा जकड़े हुए हैं? शैतान में इसीलिए लोग जकड़ जाते हैं। इब्लीस जो है वो बड़ी जबरदस्त फाइट करता है, वो उन लोगों को ही पकड़ता है जो खुदा से दूर होते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी तो इख्तियार करते हैं, हम खुदा के साथ हैं, हम खुदा के साथ हैं, हम खुदा के साथ हैं, लेकिन वो खुदा से अंदर से दूर होते हैं। याद रखें, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद ये नहीं चाहता कि एक आदमी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दुख में, बीमारी में, मुश्किलात में, मुसीबत में फंसा रहे। नहीं, वो खुदा का बंदा। खुदावंद चाहता है मेरे साथ वफादारी इख्तियार करो, मेरे साथ वफादारी इख्तियार करो, मेरे साथ चलो, मेरे हुक्म को मानो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। किसको जाहिर करेगा? अपने आप को। अपना रूह कुदस देगा, अपना होली स्पिरिट देगा, अपनी पावर देगा, अपनी प्रोटेक्शन उसको देगा कि मेरे फरिश्ते, मेरे पाक फरिश्ते मेरी आपकी क्या करें? प्रोटेक्शन। आज मेरे को सोचने की बात है, हम नया साल भी मनाते हैं, बड़ा दिन भी मनाते हैं, ईद क़यामत अल मसीह भी मनाते हैं, और भी जो त्यौहार आते हैं हम उनको मनाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये तरीका है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल नहीं करते तो हम कुछ भी मनाने के हकदार नहीं। ये याद रखें, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, आपका खादम हूँ, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, अपने आप को बचाना चाहता हूँ, अपनी औलाद को बचाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ, अपने अजीजों को, मसीही लोगों को बचाना चाहता हूँ, ताकि मसीही लोग खुदा के पाक कलाम पर अमल करें और क्या करें? खुदा से बरकत पाएं। आमीन। मेरे अजीजों, बरकत पाने के लिए खुदा के पाक कलाम पर हमें अमल करना बहुत जरूरी है।
میں دل سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں. خداوند نے مجھے بہت موقع دیا پاکستان میں اپنے جلال کے لیے. خداوند نے مجھے استعمال کیا. میں فیصل آباد میں ہمارا گھر ہے, ادھر بھی میں کافی دفعہ میسج کیا. اپنے تمہارے گھر کے ساتھ چرچ ہے, چرچ میں بہت دفعہ میسج دیا. اور بھی کتنے چرچوں میں خداوند نے مجھے استعمال کیا. اس کے بعد میں اپنے گاؤں میں آیا, ادھر ہمارا اپنا چرچ ہے, ہماری کلیسیا 20-25 گھر ہے, ادھر بھی خداوند نے مجھے بہت استعمال کیا. اس کے بعد اور کئی جگہ پہ بھی استعمال کیا. میں دل سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں. میں نے کبھی اپنی لائف میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خدا کا ایک خادم بنے گا. خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے, اپنے کلام کے لیے استعمال کرے گا. میں دل و جان سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے استعمال کیا اور کرتا رہے گا جب تک میرے نتھروں میں زندگی کا دم ہے. میں خداوند یسوع مسیح ناصری کی خدمت کرتا رہوں گا اور خداوند سے برکت پاتا رہوں گا. آمین. آج میرے عزیزو, برکت اور لعنت دو چیزیں ہیں. لینا ہمارا کام ہے. ایک طرف برکت ہے, ایک طرف لعنت ہے. لعنت اور برکت دونوں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ لعنت کیسے مل جاتی ہے اور برکت کیسے مل جاتی ہے. یہ ہم نے چوز خود کرنا ہے. ہم نے اپنے کریکٹر کو, اپنے چال چلن کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا ہے. اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق لائف گزاریں گے تو خدا ہمیں برکتوں پر برکت دے گا. ہم لعنت کے نیچے نہیں آئیں گے. لعنت کے نیچے ہم اس وقت آ جاتے ہیں جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں, خدا کے کلام کی حکم عدولی نہیں کرتے, خدا کے کلام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, خدا کے کلام کو مانتے نہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, ابلیس ہمیں پکڑ لیتا ہے. ابلیس پکڑ لیتا ہے. یہ ابلیس کی فائٹ ہے. ابلیس کی فائٹ بڑی خطرناک فائٹ ہے. یاد رکھیں, ابلیس سے بچنے کے لیے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی نجات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آج دیکھیں گے خدا کی نجات کو. دیکھنے خداوند گناہگاروں کو بھی نجات دیتا ہے. گناہگاروں کو بہت زیادہ خدا پیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑیں اور خدا کے پاس آئیں اور خدا سے کیا کریں, برکت پائیں. آج کلام مقدس میں آخری والا پڑھیں گے. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 19 باب, اس کی 1 تا 10 ہے. دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں نجات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ خدا کے کلام میں ایک حقیقت ہے. خدا کا پاک کلام کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے, کوئی سٹوری نہیں ہے. خدا کے پاک کلام میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ 100% حقیقت پر مبنی ہے. یاد رکھیے. بڑے کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی تھی, اس کا 19 باب, اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک. کلام مقدس میں دیکھو, زکئی نام ایک آدمی تھا, اس نے کیسے نجات حاصل کی. یہ ہمارے پاس ایک بہت حقیقت ہے. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے, لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا, اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا, کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند, دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آمین. آمین. زکئی پہلے پوائنٹ پر کیا تھا, اس کا قد چھوٹا تھا. زکئی نام کا ایک آدمی تھا جو مصول لینے والا تھا. وہ ٹیکس لیتا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں سود, جیسے ہم گاؤں میں زیادہ لوگ سود ہی کہتے ہیں. وہ سود لینے والا تھا, ٹیکس لینے والا تھا, وصول لینے والا تھا. اس نے کیا, اور وہ کیا تھا, ایک دولت مند آدمی تھا. وہ غریب نہیں تھا, وہ کیا تھا, دولت مند تھا. اور اسے کیا تھی, وہ کوشش کرتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو دیکھے. وہ دیکھنے کے بعد بھیڑ بہت زیادہ تھی. اس نے کیا کیا کہ بھاگ کر, اس کو پتا لگا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اس طرف سے جا رہے ہیں. اس کا قد چھوٹا تھا, وہ ایک درخت کے اوپر
चढ़ गया। किस लिए चढ़ गया? यीशु को देखने यीशु को देखने के लिए। आज हमने भी देखना है। क्या हम यीशु को देखने के लिए कुछ कोशिश करते हैं? क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस काशफा की किताब उसके 3 बात में लिखा है, बस सरगर्म हो और क्या कर? तौबा कर। पॉइंट 2 है, बस क्या कर? सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी देखना चाहते हैं हमें, वो हमारे दिल के दरवाजे के बाहर खड़े खटखटा रहे हैं। इसीलिए इसी तरह जैसे कई छोटे काद का था, उसने किया कि कोशिश की, वो सरगर्म हुआ, उसने कोशिश की, स्ट्रगल की, मेहनत की। उसके बाद क्या किया? वो देखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी को एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि उसी राह से खुदावंद यीशु मसीह नासरी से ने गुजरना था। जब आगे क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा। क्या कहा? जल्द उतरा। क्यों जल्द उतरा? कि तूने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, तूने मेरे को देखना चाहा, तो तू क्या किया? भाग कर गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। प्रेज़ गॉड। जल्द जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। प्रेज़ गॉड। ले गया। उसको क्या किया? उसने अपने घर ले आया। वो खुशी से वो उछला, वो कूदा, उसने हो सकता है छलांग लगा दी हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसने कहा, आज मैंने तेरे घर जाना है। मेरे अजीजों, आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर जाना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। क्योंकि जब लोगों ने ये देखा, आज भी बहुत से लोग हैं, जब कोई बपतिस्मा लेता है ना तो उसको मना करते हैं, वो क्या कर रहा है? जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के घर में जा उतरा है। आज भी लोग जब अपने गुनाह को खत्म करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो बहुत से लोग उन पर उंगली उठाते हैं, ये गुनाहगार है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहता है? खोए हुओं को, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, जो गुनाह में दब चुके हैं, आज खुदावंद उनको पुकार रहा है, उनको आवाज दे रहा है कि मैंने तेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी, मैंने बहुत से दुख उठाए, मैंने हाथों पैरों में केल, पसली में नेज़ा और सर पर कांटों का ताज पहनकर तुम्हारे लिए सलीब पर कफारा हुआ। मैंने सलीब पर अपना पाक खून बहाकर तुमको खरीद लिया, ताकि तुम मेरे पाक खून के खरीदे हुए हलाक ना हो, बल्कि ज़कई की तरह हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हमारे अंदर कोशिश होनी चाहिए। फिर उसने क्या किया? उसने पहला काम तो खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए स्ट्रगल की। दूसरा काम उसने किया, उसने कहा कि मैंने जितना लोगों से लिया है, किसी से न हक लिया हुआ है, उसको मैं कितना 14 वापस करता। आज मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है अगर हम गुनाह में दबे हुए हैं तो हमें गुनाह से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। निकल कर क्या करना है? हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदावंद हमें प्यार करेगा, हमें हमसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसने फरमाया, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूंगा। मेरे अजीजों, कोई मसीही, मैं नहीं समझता कि कोई मसीही ये कहता हो कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं रखता। जी कहता होगा? कोई नहीं कहता। वो सब कहते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। लेकिन अगर जब हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आज वक्त है कि हमें उसके कलाम की बातों को अब उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे तो हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे। अगर हम उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। याद रखें, अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते तो हमें ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी? जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आज वक्त है, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के खून का फिदिया जो उसने दिया हमारे लिए, हम उसकी कदर करें, उसके खून को अपने दिल में रखें,
اس کے دکھوں کو اپنے دل میں رکھیں کہ اس نے ہمارے واسطے بہت سے دکھ اٹھائے. اس نے ہاتھوں پیروں میں گر پسلی میں ریزہ اور سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر ہمارے لیے صلیب پر کفارہ ہوا. اس نے صلیب پر اپنا پاک خون بہا دیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح ناصری ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح ناصری اگر ہمارے دلوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری تو آج سے 2000 سال پہلے زندہ ہو چکا ہے. وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکا. اگر ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے دل میں زندہ نہیں ہے. یاد رکھیں اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح ناصری کو زندہ کریں. اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے کلام پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے تو خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے دل میں رہے گا, ہمارے دل میں رہے گا. اور خداوند یسوع مسیح ناصری ہماری پروٹیکشن کرے گا کیونکہ کلام مقدس میں 91 زبور میں لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. پھر خداوند ہمیں پتھر سے ٹھیس بھی نہیں دے دے. ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے, ابھی 2-2 ہزار دور ہے. آج میرے عزیزوں وقت ہے میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے خون کی, اس کی صلیب کی, اس کی زندگی پر ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں اور خداوند سے برکت حاصل کریں. خداوند آپ کو سدا برکت دے. خوش رہیں, آباد رہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس.